Hello students, this is Anjali Panchal, your English teacher. Today I am here to teach you lesson number 7, a visit to Cambridge. So let's start. Before we start this lesson, I want to read this paragraph before you read. So this is the story of a meeting between two extraordinary people, both of them disabled or differently abled, as we now see. This is the story of meeting. This story is a whole story is about meeting between two extraordinary people. We can say असाधारण people. हाँ, extraordinary people यानी कि जो साधारण इंसान नहीं है, असाधारण है. Both of them disabled. Disabled यानी अपंग है वो दोनों. Differently abled, as we now say. Stephen Hawking is one of the greatest scientists of our time. One of them is Stephen Hawking. उनमें से एक थे स्टीफन हॉकिंग्स एंड ही इज़ अ ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ अवर टाइम. वो बहुत बड़े वैज्ञानिक थे. ही सफर्स फ्रॉम अ फॉर्म ऑफ पैरालिसिस दैट कन्फाइंस हिम टू अ व्हील चेयर. एक्चुअली द स्टीफन हॉकिंग सफर्स फ्रॉम अ फॉर्म ऑफ पैरालिसिस. वो एक फॉर्म ऑफ पैरालिसिस से पीड़ित थे, सफ़र कर रहे थे वो पैरालिसिस से, जिसकी वजह से वो व्हील चेयर पर थे. And allows him to speak only by punching buttons on a computer which speaks for him in a machine-like voice. And he is allowed speaking only by punching some buttons on a computer. वो थोड़े क्लिक करते थे बटन्स को कंप्यूटर पर और वो मशीन वो कंप्यूटर उनके लिए बोलता था. यानी कि वो बोल भी नहीं पाते थे, वो सिर्फ कोई बटन्स क्लिक करके उनका जो कंप्यूटर वॉइस से वो अपनी बात बताते थे सबको. And Firdaus Kanga is a writer and journalist who lives and works in Mumbai. And the another person is Firdaus Kanga. Firdaus Kanga is a writer and journalist, we can say, who lives in Mumbai and works in Mumbai. Kanga was born in brittle bones that tended to break easily when he was a child. Like Hawking, Kanga moves around in a wheelchair. Here two people, both are disabled or differently abled, and Firdaus Kanga is a writer and journalist who is suffering from brittle bones. This brittle bones is also one kind of disease. वो एक ऐसी बीमारी है जिसमें हड्डियाँ बहुत कमज़ोर होती है. ब्रिटल बोन्स, उनकी हड्डियाँ बहुत कमज़ोर है. वो इतनी कमज़ोर है कि जैसे उनके चलने से भी उनकी हड्डियाँ टूट जाती थी, जैसे जब वो एक चाइल्ड हुआ करते थे. तो लाइक हॉकिंग, कांगा मूव्स अराउंड इन अ व्हील चेयर. तो स्टीफन हॉकिंग्स की तरह जो फिरदौस कांगा है वो भी व्हील चेयर पे ही अपनी ज़िंदगी बिताते थे. सो लेट्स स्टार्ट दिस. द टू ग्रेट मैन एक्सचेंज थॉट्स on what it means to live life in a wheelchair and on how the so-called normal people react to the disabled. So the story and the meeting is related to the thoughts. That two great men exchange their thoughts on what it means to live. मतलब क्या व्हीलचेयर पर ज़िंदगी बिताना क्या होता है एंड कैसे नॉर्मल पीपल एक डिसेबल्ड पीपल के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं. आई होप यू ऑल समटाइम्स यू कैन सी नॉर्मल पीपल कैसे डिसेबल्ड पीपल के ऊपर रिएक्ट करते हैं कि वो कैसे डिसेबल्ड है तो उनका मजाक उड़ाते हैं या वगैरह वगैरह. सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट दिस स्टोरी. Cambridge was my metaphor for England, and it was strange that when I left it had become altogether something else, because I had met Stephen Hawking there. Here Firdaus Kanga is the writer of this lesson, and he said that Cambridge was his metaphor for England. Metaphor means here the one kind of speech is used, one kind of phrases is used. कैम्ब्रिज उनको कैसा लगता था, इंग्लैंड जैसा लगता था. एंड इट वॉज स्ट्रेंज दैट व्हेन आई लेफ्ट, जब फिरदौस कांगा ऑथर वो ने कैम्ब्रिज छोड़ा तब उनको कैसा लग रहा था, वो पूरे बदल से गए थे. क्यों? बिकॉज आई हैड मेट स्टीफन हॉकिंग्स देयर, बिकॉज वो वहाँ पे स्टीफन हॉकिंग्स को मिले थे. दैट्स वाई ही टोटली चेंज्ड एंड समथिंग एल्स इज देयर. It was on a walking tour through Cambridge
that the guide mentioned Stephen Hawking, poor man, who is quite disabled now. Though he is a worthy successor to Isaac Newton, whose chair he has at the university. It was in a walking tour through Cambridge that the guide mentioned Stephen Hawking's. यहाँ पे जो टूर थी जहाँ पे वो गाइड उनको टूर पे गाइड कर रहा था, तो वहाँ पे वॉकिंग थ्रू में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी गाइड समय जो गाइड था उन्होंने मेंशन किया स्टीफन हॉकिंग्स के बारे में कि वो बेचारे पुअर मैन हु इज़ क्वाइट डिसेबल्ड नाउ, वो अभी अपंग है, वो एक डिसेबल इंसान रह चुके हैं अभी. दो इज़ अ वर्दी सक्सेसर मीन्स वारिस. वो किसके वारिस हुआ करते थे? आइजैक न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन के वो वारिस हुआ करते थे. हुज चेयर ही हैज़ एट द यूनिवर्सिटी. तो जो स्टीफन हॉकिंग्स है वो किसकी चेयर पर काम कर रहे हैं अभी यूनिवर्सिटी में? सो ही इज़ वर्किंग एट द चेयर ऑफ आइजैक न्यूटन. सर आइजैक न्यूटन की चेयर पे वो अभी बैठ के काम कर रहे हैं, वो उनके वारिस है. एंड आई स्टार्टेड बिकॉज आई हैड क्वाइट फॉरगॉटन दैट दिस मोस्ट ब्रिलियंट एंड completely paralyzed astrophysicist. Students here, astrophysicist means a scholar of astrophysics, branch of physics dealing with stars and planets, etc. And Stephen Hawking is a astrophysicist, ब्रिलियंट एस्ट्रोफिजिस्ट थे वो, एक अपंग और ब्रिलियंट बहुत होशियार एस्ट्रोफिजिस्ट थे. यहाँ पे ऑथर भूल गए हैं, वो जब स्टार्ट करते हैं तब वो बताते हैं कि आई हैड क्वाइट फॉरगॉटन दैट दिस मोस्ट ब्रिलियंट एंड कम्प्लीटली पैरालाइज्ड एस्ट्रोफिजिस्ट, the author of A Brief History of Time, one of the biggest best sellers ever, lived here. तो वहाँ पे कौन रहता था कि जो एस्ट्रोफिजिस्ट है, ग्रेट एस्ट्रोफिजिस्ट भी है और एक ऑथर भी है, वो एक राइटर भी है. वो उन्होंने अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम बुक लिखी थी जो उस टाइम की सबसे बेस्ट सेलिंग बुक थी, सबसे ज़्यादा बिकने वाली बुक थी, उसके वो ऑथर रह चुके थे. When the walking tour was done, I rushed to the phone booth and almost tearing the cord so it could reach me outside phone Stephen Hawking's house. When the walking tour was done, when Firdaus Kanga walking through that Cambridge University and their walking tour was done, then suddenly he rushed to the phone booth. वो नज़दीक के फ़ोन बूथ पर गए और ऑलमोस्ट टीयरिंग द कॉर्ड, जो डायलर और रिसीवर के बीच में जो तार जैसा वायर जैसा लगा होता है, दैट इज़ कॉल्ड कॉर्ड, वो ऑलमोस्ट टूटने वाला था. सो इट कुड रीच मी आउटसाइड. वो वहाँ पहुँच के तुरंत ही स्टीफन हॉकिंग्स के घर पे कॉल लगाते हैं. देर वॉज हिज असिस्टेंट ऑन द लाइन. वहाँ पे कौन था? देर वॉज हिज असिस्टेंट ऑन द लाइन. लाइन पर कौन था? जब फिरदौस कांगा ने स्टीफन हॉकिंग्स को कॉल लगाया तब लाइन पर उनके स्टीफन हॉकिंग्स के असिस्टेंट थे. आई टोल्ड हिम आई हैड कम इन अ व्हील चेयर फ्रॉम इंडिया. So this author told to that assistant that he had come from India in a wheelchair, कि वो इंडिया तक, इंग्लैंड से इंडिया वो व्हीलचेयर पे आए हैं. Perhaps he thought I had propelled myself all the way. तो वो यहाँ पे थोड़ा मजाकिया मूड में ऐसे भी सोच के कहते हैं कि शायद उनको लगा होगा, perhaps he thought, the assistant thought that he had propelled himself all the way, यानी कि वो खुद व्हीलचेयर पर इंग्लैंड से इंडिया आए होंगे. To write about my travels in Britain. तो वो क्यों आए हैं? वो अपना जो सफ़र है उसके बारे में लिखने आए हैं. I had to see Professor Hawking, even 10 minutes would do. अगर 10 मिनट भी हो सके तो वो उनसे मिलना चाहते हैं. स्टीफन हॉकिंग्स को फिरदौस कांगा मिलना चाहते थे. दैट्स वाई ही इज़ कॉल्ड एट दी हॉकिंग्स हाउस. इसीलिए उनको कॉल किया था, असिस्टेंट ने कॉल उठाया था, तब बात हुई उनसे कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, मैं इंग्लैंड से इंडिया आया हूँ. आई हैड टू सी प्रोफेसर हॉकिंग, इवन 10 मिनट्स वुड डू. हाफ एन आवर ही सेड फॉर 3:30 to 4. So assistant allowed him to meet Mr. Hawkins, Stephen Hawkings for half an hour. आधे घंटे का टाइम दिया उनको मिलने के लिए. तो he said, the assistant said that from 3:30 to 4, 3:30 से 4 बजे का टाइम उनको दिया मिलने के लिए. And suddenly I felt weak all over.
सडनली आई फील्ड वीक ऑल ओवर मीन्स स्टूडेंट्स ये आप क्या कहना चाह रहे हैं, जो फिरदौस कांगा दी ऑथर सेड दैट सडनली आई फील्ड वीक ऑल ओवर। वीक ऑल ओवर मीन्स वो अपने आप को एक बहुत वीक इंसान मानने लगे, उनके अंदर एक वीकनेस सी आ गई, जैसे उनको मिलने का टाइम मिल गया, उनको डिसाइड हो गया, जैसे ही उनको डिसाइड हो गया कि उनको स्टीफन हॉकिंग से मिलना है, वो अपने आप को बहुत वीक फील करने लगे। Growing up disabled, you get fed up. Growing up disabled, you fed up with people asking you to be brave, as if you have a courage account on which you are too lazy to draw a check. Student suddenly he felt very weak and growing up disabled, यानी कि डिसेबल होके बड़ा होना और ये सब सुनना, बातों पीपल की, सारे लोगों की बातें सुनकर बड़ा होना, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज जैसा लगता है। आप कैसे बोर हो जाते हो जब आपको कोई सजेस्ट करता है डू दैट, डू दिस, डू दैट, आप ये करो, वो करो, ब्रेव बनो, स्ट्रगल करो, दिस काइंड ऑफ थिंग्स वी कैन लिसन समटाइम्स, विल fed up with that situation. So you get fed up with people asking you to be brave. आपको सब कहेंगे कि ब्रेव बनो एज अ डिसेबल्ड, सब आपको सलाह देंगे एज इफ यू हैव अ करेज अकाउंट, जैसे कि आपके पास कोई साहस, हिम्मत का कोई अकाउंट हो बैंक में, ऑन विच यू आर टू लेजी टू ड्रॉ अ चेक, और आप उसमें बहुत लेजी हो, बहुत आलसू हो, उसमें एक साहस का अकाउंट है आपके पास बहुत सारा साहस पड़ा है, बहुत सारी हिम्मत है आपके पास, और फिर भी आप बहुत आलसी हो उसमें से एक चेक निकालने के लिए, मतलब आपका साहस दिखाने के लिए। तो यहाँ पे लोगों की बातें सुन सुनकर जो यहाँ पे जो ऑथर कहना चाहते हैं वो बातें, वो एक मजाक के मूड में कहते हैं कि जैसे हमारे पास कोई साहस का, हिम्मत का बैंक का अकाउंट हो और उसमें से हमें चेक निकालना हो साहस का, वैसे यहाँ पे बात हो रही है। The only thing that makes you stronger is seeing somebody like you achieving something huge. Then you know how much is possible and you reach out further than you ever thought you could. So what the Firdaus Kanga said here, the only thing that makes you happy, जब आपको अंदर से इंसान स्ट्रांग कब बनता है, जब वो अपने जैसा दूसरा इंसान सामने दिखता है। So that what the Firdaus Kanga want to say, the only thing that makes you stronger is seeing somebody like you in front of you. आप अपने सामने अपने ही जैसा अगर कोई इंसान डिसेबल देखते हो, तब आपके अंदर थोड़ा स्ट्रांगनेस फील होगा। देन यू नो हाउ मच इज पॉसिबल एंड यू रीच आउट फर्दर देन यू एवर थॉट यू कुड। फिर क्या होता है, आप उससे भी ज़्यादा कर सकते हो जो आपने सोचा होगा करने के लिए, उससे भी ज़्यादा आप कर जाओगे। बट जब आपको आपके जैसा कोई सामने दिखाई देता है और आप में कुछ अचीव करने का आपको साहस आता है। I haven't been brave, said his disembodied computer voice the next afternoon. I have had no choice. I haven't been brave. मैं कभी भी बहुत हिम्मत वाला नहीं रहा हूँ, बहुत ताकतवर नहीं रहा हूँ। said his disembodied computer voice the next afternoon. दूसरी दोपहर को, दूसरे दिन दोपहर को जब वो मिलते हैं, तब सामने स्टीफन हॉकिंग्स कहते हैं कि मैं कभी इतना हिम्मत वाला नहीं हुआ। और ये कौन बोलता है? कंप्यूटर वॉइस, जो एक स्विच जैसा उनके हाथों में होता है और वो जो टैप करते हैं और उनकी बिहाफ से जो कंप्यूटर वॉइस निकलता है वो बोलता है आई हैड नो चॉइस, बट मेरे पास कोई चॉइस नहीं। अगर जब आप अकेले हो जाते हो, जब आपके पास कोई चॉइस नहीं होता है, तो गॉड विल हेल्प यू। वही आपको एक अंदर से हिम्मत देते हैं और वही आपके लिए सब कुछ बन जाते हैं। देन वी कैन से नो चॉइस। अगर हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, देन वी हैव टू बी ब्रेव। श्योरली आई वॉन्टेड टू सी लिविंग क्रिएटिवली विद द रियलिटी ऑफ हिज disintegrating body was a choice. Surely I wanted to say, sure, I want to say something, living creatively. So here the Firdaus Kanga author want to say that living creatively with the reality of his disintegrating body was a choice. तो कोई ऐसे अपनी चॉइस नहीं बनाता है खुद से। But I kept quiet because I felt guilty every time I spoke to him, forcing him to respond.
उनको बहुत, फिरदौस कांगा ऑथर को बहुत गिल्ट फील हो रहा था, क्योंकि वो शांत हो जाते थे। क्यों उनको गिल्ट फील होता था? क्योंकि हर बार अगर वो कोई पूछते या कुछ बताते हैं तो वो क्या करते हैं, स्टीफन हॉकिंग्स को रिस्पॉन्ड करने के लिए फोर्स करते हैं। तो दैट्स वाई ही केप्ट क्वाइट एंड ही फेल्ट गिल्टी एवरी टाइम ही स्पोक्स to him, forcing him to respond. There he was, tapping at the little switch in his hand, trying to find the words on his computer with the only bit of movement left to him. His long pale fingers, उनकी जो फिंगर्स है, बड़ी बड़ी फिंगर है, लंबी फिंगर है, बट पैल यानी कि बेजान फिंगर्स है, जिससे वो अपने हाथ में रही एक छोटी सी स्विच जैसा होता है, जिससे वो थोड़ी सी अपने कर पाए उतनी मूवमेंट से वो शब्द ढूंढने की कोशिश करते हैं, बिकॉज वो नहीं बोल पाते, उनकी बेजुबा है, बट वो कंप्यूटर वॉइस में, कंप्यूटर में वो वर्ड्स ढूंढते हैं सामने रिस्पॉन्ड करने के लिए. एवरी सो ऑफन हिज आईज वुड शट इन फ्रस्ट्रेटेड एग्जॉशन. हर बार उनकी आंखें बंद हो जाती थी, एक गुस्से में, एक फ्रस्ट्रेशन में, एक एग्जॉशन में उनकी आंखें बंद हुआ जाया करती थी. एंड सिटिंग अपोजिट हिम आई कुड फील हिज एंग्यूज. उनके सामने बैठ के जो फिरदौस कांगा ऑथर है, वो उनका अंदर का जो फ्रस्ट्रेशन है, उनका जो अंदर का गुस्सा है, वो सामने बैठ के फील कर पाते थे. बिकॉज बोथ द पर्सन्स डिसेबल्ड, द माइंड buoyant with thoughts that came out in frozen phrases and sentences stiff as corpses. So here buoyant means intensely active and vibrant. स्टूडेंट स्टीफन हॉकिंग का जो माइंड था वो बहुत पावरफुल था. उनके अंदर जो एनर्जी थी, जो उनके अंदर जो वाइब्रेशन था, जो उनका माइंड एक्टिव था, बट उनके अंदर जो भरा पड़ा हुआ सारे थॉट्स थे, वो जो बाहर आ रहे थे, वो एक फ्रोज़न फ्रेजेस में, एक फ्रोज़न यानी कुछ थीज जाता है जो हम फ्रीज़र में रख के फ्रोज़न कर देते, तो उनके जो थॉट्स आ रहे थे वो फ्रोज़न आ रहे थे. एंड सेंटेंसेस स्टीफ एज कॉप्सेस, जैसे एक उनके जो सेंटेंसेस, उनकी जो आवाज़ें आ रही थी वो बिना जान वाली, कोई फीलिंग बिना की. कंप्यूटर वॉइस कैसे आता है, वैसे जब कोई इंसान बोलता है और जब कोई कंप्यूटर मशीन बोलता है तो टू थिंग्स आर डिफरेंट. सो यहाँ पे उनके बेजान sentences हुआ करते थे. A lot of people seem to think that disabled people are chronically unhappy. I said here, Firdaus Kanga, author said that a lot of people seem to think that disabled people are chronically unhappy. ये जो फिरदौस कांगा है want to tell that Stephen Hawking that a lot of people seem to think, बहुत सारे इंसान, बहुत सारे people ये सोचते हैं कि जो डिसेबल्ड पीपल होते हैं वो अनहैप्पी होते हैं, वो ज़्यादा हैप्पी नहीं होते हैं. आई सेड आई नो दैट्स नॉट ट्रू. फिरदौस कांगा सेड, मैं जानता हूँ ये सच नहीं है मेरे लिए, माई सेल्फ, फॉर माई सेल्फ इट्स नॉट ट्रू. आर यू ऑफन लाफिंग इनसाइड, क्या आप ये बात सुनकर अंदर अंदर कभी हंसे हो कि a lot of people seem to think that disabled people are chronically unhappy. I said I know that's not true for myself. वो मेरे लिए सही नहीं है, बट क्या आपने कभी ऐसा फील करके अंदर ही आप हंसे हो? दिस सेंटेंस वॉज आस्क्ड बाय फिरदौस कांगा टू द स्टीफन हॉकिंग. So students, I hope you all understand this explanation. Here the story is about meeting between two disabled people. I want to explain the second part, the another whole half story in the next video lecture. So till that time, have a nice day and thank you.